Hello everyone, welcome back. So as we are done with chapter 12, which was conquering distance, in which we learned that how we can conquer the distances. हम कैसे अपने जो हमारे distances हैं उनको कैसे conquer कर सकते हैं, उन पे कैसे जीत पा सकते हैं. And in that chapter we read about the different modes of transport, right? Now our next chapter is about closing distances. Closing distances का मतलब है कि although distances are there, but हम कैसे still close रह सकते हैं. It is about that, and in this chapter we will learn about the different modes of communication. Okay. So before we proceed, see, man cannot live alone, right? Presently we are facing pandemic, and due to corona we all are locked down in our homes. To be still, we are communicating with each other. We are not alone. We are living with our families. We are communicating with the help of different means of communication. In fact, we are having online schools also, right? Online classes lag rahi hain. So man cannot live alone. Man is a social animal, and earlier also from the ancient time he needs to communicate with others, and the early men used to communicate with others by beating drums or giving smoke signals, as you can see in the picture. क्योंकि जो ड्रम की बीट है लॉन्ग डिस्टेंस तक वो आवाज जाती है, गूंजती है, आवाज इको होती है. तो लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेट करने के लिए पीपल यूज टू बीट द ड्रम्स, राइट? एंड द स्मोक सिग्नल वर द वन ऑफ द फर्स्ट कम्युनिकेशन मेथड्स ऑफ द ह्यूमैनिटी. अगर कोई कहीं पे गुम हो गया है तो आप देखेंगे फॉरेस्ट में भी अगर आप लॉस्ट हो गए हो तो आपको स्मोक फॉर्म करने के लिए बोला जाता है, ताकि जो स्मोक क्लाउड्स होंगे उससे पता चल जाए आपकी लोकेशन का. तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जब अर्ली मैन को करनी होती थी तो आइदर ही यूज्ड टू बीट द ड्रम्स or he used to give the smoke signal. Slowly he started drawing paintings on the walls of the caves, which later developed into the art of writing. This is the image of Bhimbetka rock shelter, which is in Madhya Pradesh. और आप देख सकते हैं कि केव की जो वॉल है, जो पत्थर है, इसके ऊपर कैसे जो है स्टिक आर्ट किया हुआ है, उससे ड्राइंग बनाई हुई है. और धीरे धीरे ये जो ड्राइंग थी इसी ने राइटिंग के आर्ट को डेवलप किया. एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग हिज थॉट्स थ्रू languages. Start हुई थी with beating of drums, then with the smoke signals, and then with the help of drawing and paintings, and then through language, right? Now question is that what does communication mean? ये communication जो है इसका मतलब क्या होता है? So communication means sending and receiving messages is known as communication. So when we send any message and we receive it, not only sending and receiving, understanding is also another very important, very vital part of communication. कोई आपको मैसेज सेंड कर रहा है, आप उसे रिसीव भी कर रहे हैं, बट आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो सेंडिंग एंड रिसीविंग plus understanding of the messages is actually known as the communication. Now communication can be of two types, either it is verbal or non-verbal. Verbal means जिसमें words use हो रहे हैं, जहाँ पे हम वर्ड्स की हेल्प ले रहे हैं टू कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन, उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, जो कि हम यूजुअली टेलीफोन में कम्युनिकेट करते हैं बाय टॉकिंग, बात करके. जब हम टेलीफोनिकली या किसी भी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और सामने वाले को अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करते हैं, उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं. नाउ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन which includes sign language or the facial expression. जैसे कि आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि expressions आते हैं, background music आता है, so that those expression, facial expression, they are the non-verbal means of communication. जैसे dancers होते हैं, वो अपनी dancing postures या फिर अपने facial expression या फिर अपनी eyes को wide या small करके या face पे smile या फिर angry वाली look ला करके अपने expressions को use करते हैं to express themselves. और other than this, जो dumb and deaf people होते हैं, they also used to communicate, they also used to use this non-verbal mean of communication, and they used to use the sign languages.
सो कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल और इट कैन बी नॉन वर्बल. अगर आपने मिल्क नहीं पीना तो आप अपना फेस क्या करते हैं, स्क्वीज कर देते हैं, अपने नोज को गंदा से एक्सप्रेशन देते हैं, एंड उसके बाद आपकी मम्मा आपको वाइड आईज शो करती हैं, अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाती हैं, जिसके डर से आप वो दूध जो है कंज्यूम कर लेते हैं. आपको पता चल जाता है कि दैट नाउ माई मदर इज वेरी एंग्री एंड आई हैव टू ड्रिंक द होल मिल्क, राइट? सो दोज आर द नॉन वर्बल मीन्स ऑफ communication. Now, see, if you have to give a message to someone who is very close by, तो आप क्या करते हैं, आप बोल करके उनको अपना मैसेज दे देते हैं. But if you have to contact with someone who is far away, then what would you do? अगर कोई बहुत दूर रहता है तो फिर आप उनसे कैसे communicate करेंगे? So here's the how this originates. So this is the invention of writing, which provided human being with a new mean of communication. And it also helped to save the written matter for the generations to come. Writing की help से जो upcoming generation होती है उनके लिए भी material available होता है. आप सोचिए कि ये A to Z जब हम phonetic sounds learn करते हैं, उसके बाद जैसे जैसे हम higher classes में बढ़ते जाते हैं तो हम बहुत कुछ नया सीखते हैं, right? लेकिन हर एक नई चीज़ को सीखने के लिए हम रिसर्च करने नहीं बैठते हैं. हमारे पास बुक्स होती हैं जिनमें मटीरियल ऑलरेडी रिटन है. जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उन्होंने जो रिसर्च की है, उन्होंने जो कुछ भी स्टडी किया है उसको नोट डाउन करके रख दिया है. तो उससे क्या होगा कि हम जो उन्होंने स्टडी किया हुआ है उसको रीड करके उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में फर्दर स्टडी कर सकते हैं, राइट? हमें वो प्रीवियस चीज हमेशा हमें बेसिक से शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट? सो ये जो रिटन मटेरियल है ये हम अपकमिंग जनरेशन्स के लिए सेव कर सकते हैं. नॉट ओनली दिस, जो ये रिटन मटेरियल होता है ये प्रेजेंट जनरेशन को प्रीवियस एंसेस्टर्स या फिर हमारे पहले की जो जनरेशन्स थी उस वक्त कैसा कल्चर था, किस तरीके का सिनेरियो था, उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. एंड इट वाज पॉसिबल टू कॉन्टैक्ट पीपल हु वर फार अवे बाय सेंडिंग मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, रिटन मैसेजेस. So after smoke signals, when the people started using language, after that they started writing also, and written messages उन्होंने जब लिखना शुरू किए उसके बाद प्रॉब्लम ये थी कि जो written message है प्रेजेंटली तो हम WhatsApp यूज कर लेते हैं या फिर हमारे पास जो SMS सर्विस है वो यूज कर लेते हैं, बट पहले ये चीजें नहीं होती थी. तो वो क्या करते थे, in the beginning written messages were sent through the specially trained pigeons और the horse riders. स्पेशली जो pigeons थे उनको ट्रेन किया जाता था और वो एक जगह से, सी एज यू कैन सी इन दिस इमेज, इसके जो आप देखेंगे ये जो इसके क्लॉ के ऊपर है इस पे एक छोटा सा मैसेज जो है वो टाई किया गया है, राइट? अब ये स्पेशली ट्रेन्ड पिजन है, ये एक जगह से उड़ेगा और जिस जगह की लोकेशन इसको लर्न करवाई गई है, इसे ट्रेन किया गया है जिस जगह के लिए, ये उस जगह पहुंच जाएगा और वहां पे जो भी पर्सन होगा वो इस मैसेज को निकाल लेगा और फिर जहां पे भी देना होगा वहां दे देगा. Either they have to do this या फिर हॉर्स राइडर, जो हॉर्स राइडर है कोई वेल ट्रेन्ड हॉर्स राइडर है जो लॉन्ग डिस्टेंस तक इजीली कवर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ हॉर्स, उसको वो मैसेज बता दिया जाएगा और वो उसको लेकर के जाएगा और नेक्स्ट जगह देगा. यूजुअली पहले जो वॉरियर्स होते थे और जो किंगडम्स होते थे, किंग्स यूज्ड टू हैव सच हॉर्स राइडर मैसेंजर्स. Now progress, see this is the evolution of telecommunication. कुछ इस तरीके से evolution हुआ है. पहले man used to beat drums. After drum beating उसने देखा कि smoke signals भी दूर तक जाते हैं, वो drum beat से भी ज़्यादा दूर तक जाते हैं. And then उसने क्या start किया, उसने carrier pigeons या फिर pony express यानी कि horse rider start किए and later on they developed telegraph, right? Now, progress in the life of man made it possible to send letters, parcel and money orders through post office or
courier services. Now post offices इनका एक ही काम होता था, लेटर को, रिटन मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, एंड स्टेप बाय स्टेप दे ऑल्सो डेवलप्ड एज विद द डेवलपिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दे ऑल्सो डेवलप्ड. Indian Postal Service has a huge network that makes sure that you receive your mail in time. आपका लेटर आपके पास टाइम पे पहुंच जाए, इसलिए ऑल ओवर इंडिया एक अच्छा खासा नेटवर्क बिछाया गया पोस्टल सर्विसेज का. आप देखेंगे, आप कहीं पे भी चले जाएं, आपको पोस्ट ऑफिस वहां पे डेफिनेटली मिल जाता है. जो अर्जेंट मैसेजेस होते थे उनको स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड करते हैं. इसके अलावा इनलाइन लेटर्स होते हैं, जो आप नॉर्मल लेटर लिखते हैं, पिन वगैरह एड्रेस वगैरह डाल करके आप उसे लेटर बॉक्स में डाल देते हैं, और फिर अपने रिलेटिव्स को या अपने फ्रेंड्स को, या फिर कोई अगर आपका बिजनेस कॉन्टैक्ट है उनको आप भेज सकते हैं. चाहे आप इंडिया में भेजिए, चाहे आप ऑल ओवर वर्ल्ड भेजिए. पोस्टल पिन सर्विस जो होती है, पिन के हेल्प से आप उसको कहीं पे भी पूरी दुनिया में भेज सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो कीप योर सेविंग्स इन अ पोस्ट ऑफिस. अब पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट्स भी ओपन होते हैं. अलग अलग डिफरेंट स्कीम्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ताकि आप अपने मनी को भी सेव कर सकें इन द पोस्ट ऑफिसेस, क्योंकि बैंक से ज्यादा इंडिया में पोस्ट ऑफिसेस हैं, राइट? Now, see, writing letter is a fun. You can keep in touch with your friends and family. You can also discover interesting information about different places, food items, dresses, etc. Moreover, you can read them at anywhere at any number of times if you are having it. तो आप जितनी मर्जी बार उन लेटर्स को पढ़ सकते हैं. अदर देन आपने पेन फ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट सुना होगा. पेन फ्रेंड्स में क्या होते हैं, 2 डिफरेंट स्टेट के लोग जो हैं, जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, वो एक दूसरे को लेटर्स लिखा करते थे. पहले ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा होता था, वो लेटर्स लिखते थे. और जो अगर मैं बंगाली हूँ तो फिर मैं अपने कल्चर के बारे में, अपने वेस्ट बंगाल के बारे में, जो सिनारियो है, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो हमारी ड्रेसेस हैं, what kind of food do we like, उसके बारे में आई कैन राइट डाउन. और अगर मेरा कोई फ्रेंड है who is sitting in the हिमाचल प्रदेश, तो वो उसके बारे में लिख सकता है, एंड वी कैन एक्सचेंज लेटर्स. इससे क्या होगा, हमें एक दूसरे के कल्चर के बारे में भी पता चलेगा, और डिफरेंट सिनारियो, हाउ पीपल यूज टू लिव इन दोज 2 प्लेसेस, वो सब भी पता चलेगा. Now, do you know that Indian Postal Services has the largest number of post boxes in the world? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पोस्ट बॉक्सेस इंडियन पोस्टल सर्विसेज की हैं. Now, these are few letter boxes. आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 डिफरेंट कलर के लेटर बॉक्सेस है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, राइट? तो ये जो रेड लेटर बॉक्स है, दिस इज फॉर मेल्स विच आर नॉट लोकल. जो लोकल नहीं है वो वाले लेटर्स जो है रेड मेल बॉक्स में या रेड लेटर बॉक्स में डाले जाते हैं. देन द ब्लू लेटर बॉक्स जो होता है, इसमें लोकल मेल्स को डाला जाता है. जो ग्रीन है, अगर आपने किसी मेट्रो सिटी में मेल भेजनी है, लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो उनकी लेटर्स आप ग्रीन लेटर बॉक्स में डालेंगे. और जो येलो लेटर बॉक्स है, ये स्पेसिफिकली होता है कैपिटल सिटीज में मेल पहुंचाने के लिए. अगर आपने किसी भी स्टेट की कैपिटल में जो है मेल पहुंचानी है, लेटर भेजनी है, तो यू कैन यूज द येलो लेटर बॉक्स. And now, after these development of writing and all that, हमारे पास एक न्यू चीज आ गई कम्युनिकेशन के लिए, जिसका नाम था टेलीफोन. सी, लेटर में क्या होता है कि एक पर्सन है, सेंडर है, वो लेटर लिख रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है, वो रीड करेगा लेटर, उसके बाद वो भेजेगा लेटर. सो ओवरऑल लाइक अगर 1 वीक उसको लेटर रिसीव करने में लगता है, तो अनदर वीक उसको सेंड करने में लगता है. तो अगर उन्हें आपस में कम्युनिकेट करना है, इट वुड टेक ऑलमोस्ट half a month, right? Whereas telephone is a two-way communication, because one can talk as well as listen in this, right? और हमारे पास तो अब मोबाइल फोन है, जिसने हमारा ये जो पेंडेमिक है इसको काफी इजी कर दिया है, वरना ये बहुत डिफिकल्ट होता. तो 2-वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, आप सुन भी सकते हैं और आप अपने आप को उसी वक्त एक्सप्रेस भी कर सकते हैं. जो भी सेंडर है, जो भी आपको मैसेज दे रहा है, आप उसको रिस्पॉन्स भी इंस्टेंटली दे सकते हैं. Now, do you know that in 1876, when Graham Bell is the one who invented telephone, he phoned his assistant who was in another room and said,
Come here, Watson, I want you. Watson heard the request through the receiver connected to the transmitter and telephonic communication started. So it was 1876 जब से telephonic conversation जो है ये start हो गई थी. Graham Bell is the person जिन्होंने invention की थी telephone की. Now sometimes a large number of people have to communicate it at the same time, and this kind of communication is known as mass communication. Mass मतलब number of, बहुत ज़्यादा. तो जब बहुत ज़्यादा लोगों से आपने communicate करना है एक साथ तो हम उसको mass communication कहते हैं. और रेडियो है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, सिनेमा, थिएटर, ये सब means of mass communication है. लेकिन ये सब वन वे कम्युनिकेशन है. ये सिर्फ मैसेजेस दे सकते हैं, आपका रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं. सो मैक्सिमम जो मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है दे आर वन वे कम्युनिकेशन. एंड दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स एज यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो. इट इज कंप्यूटर, रेडियो, टेलीफोन, न्यूज़पेपर, सेलुलर फोन विच ऑल्सो इंक्लूड्स आवर मोबाइल फोन्स, लेटर, टेलीविजन और टीवी एंड द मैगजीन. इन्हें बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, एक साथ बहुत सारे लोग एट टाइम पढ़ लेते हैं. उनको मैसेज मिल जाता है, न्यू डिस्कवरीज के बारे में पता चलता है, वट एवर हैपनिंग अराउंड उसके बारे में पता चलता है. So in recent time, written communication has taken new form, and this new form is email, SMS and MMS, right? जो email, E stands for the electronic, it is electronic mail जो हम अपने phones या फिर computer के through send करते हैं. SMS stand for short message service जो हम अपने phones में use करते हैं. और जो images वगैरह हम share करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा good morning, good night, good afternoon के images आ रहे होते हैं. कोई भी festival होता है तो images आते हैं, आप click करते हैं अपनी photograph और वो भी आप share करते हैं. So it is actually multimedia messaging services or MMS. Now various other facilities are also available on mobile phone like WhatsApp, Twitter and Facebook, right? So this is all about the closing distances. Bye bye, take care everyone.